Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with our third chapter, that is World War II and Cold War. Right? In this, tension between United States and its unlike ally in the Soviet Union preceded to World War II. फिर क्या हुआ? जर्मन invention of Soviet Union and Japan attack on Pearl Harbor created an alliance between the United States and the USSR. As World War II transformed both United States and the USSR, turning the nation into formidable world power, competition between the two increased. Following the defeat of Axis power and ideological and political rival between the United States and the USSR gave way to the start of the Cold War. Then moving towards the next point, that is the World War II. A small introduction to a great world conflict and all its causes. The so-called war to end all wars, the First World War did not solve any of the problems which had caused it. The Second World War was the largest and the most violent armed conflict that opposed between 1939 and 1945. The Allied countries with a democratic ideology counterances to the Axis coalition with a totalitarian character. In the beginning of the war, the first bloc consisted of the United Kingdom, France and Poland. But the war continuation, more countries joined to that bloc, such as United States of America, China and Soviet Union. The war was started by Germany but later was joined by Italy, Japan, Hungary, Romania, making the Axis powers blocs. However, in the beginning of the war, until its invention by Germany, the Soviet Union also belonged to the Axis. The main cause of conflict are related to the agreement made after the First World War, the policy of appeasement, which was directed at France after the Second World War, and expansion of Germany and Japan. On one side were the Axis power में कौन था? German, Italy and Japan, right? और दूसरी तरफ क्या था? On the other hand, there was an allied power that include USA, Britain and France. Russia at first was with the Axis power, but when Germany attacked her, Russia was forced to join the hands with the alliances. There was immense loss of life and destruction of property. जापान refused to surrender, इसलिए उन पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था on Hiroshima and Nagasaki. The allies were careful not to be harsh at the peace conference, right? The Second World War was the rise of two new superpower, USA and USSR. Britain and France were now second-rate power. Germany, Italy and Japan were economically destroyed. Japan was occupied by SCAP to help the economic recovery. Then we were looking at the causes of the World War II. Treaty of Versailles. The injustice of the Treaty of Versailles was largely responsible for the outbreak of the Second World War. This treaty showed a spirit of vengeance by imposing several terms and restrictions on Germany. Treaty of Versailles had stripped her of all armaments and left her powerless before the enemy. Treaty of Versailles deprived her of all her colonies, burdened her with a huge war indemnity, and placed the war guilt only on her solution. All this was done without giving Germany any opportunity to negotiation. इसलिए क्या था? जर्मन के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुई, ऐसा उनको लगता था, राइट? अभी उनको इन सब प्रॉब्लम से मुक्ति पानी थी, तो हिटलर वॉज द ओनली वन पर्सन हु प्रॉमिस्ड देम कि बाबा मैं तुम सबको इन सब से छुटकारा दिलाऊंगा. और सबसे पहले हिटलर ने क्या किया? वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल है उसके अगेंस्ट जाने शुरू कर दिया. और फिर क्या है, जब हिटलर उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया तो ये लीग ऑफ नेशन कुड नॉट चेक ऑल दिस एंड एनीवे इट गिव राइज टू द वर्ल्ड वॉर II. Then second was of the failure of the League of Nations.
बराबर था ना, ये तो पहले भी अपन ने बोला था। लीग ऑफ नेशन ने अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन कब फॉर्म हुआ था? इट वॉज फॉर्म आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। बट लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो सारे कंट्रीज़ को अच्छे से एक साथ रख नहीं पाया, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन सब कंट्रीज के एक्सेप्ट नहीं किए, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। Had the League of Nations done its duty well, there would have been no war. See, अगर लीग ऑफ नेशन ने अपना काम अच्छे से किया होता तो क्या रहता, वहाँ पे कोई वॉर ही नहीं होता। द लीग फेल टू कम अपॉन टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। से ये लीग क्या हो गया, लीग है ना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। द लीड हैड बिकम The league had become nothing more than a debating society since the power used it for their own personal objective. See, लीग ऑफ नेशन क्या करने लग गया, जो अच्छे अच्छे कंट्रीज थे उनको इम्पोर्टेंस मिलने लग गया और सिर्फ उनके हिसाब से ही लीग ऑफ नेशन काम करने लग गया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, लीग ऑफ नेशन का मोटिव क्या रहना चाहिए एक्चुअल में, कि सब जगह शांति बनाए रखना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शांति तो बनाना नहीं बनाना वो तो सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे दे आर डिबेटिंग ऑन पावर्स और उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। ब्रिटेन यूज द लीग एज एन अल्टरनेटिव टू बॉस्लाविस, फ्रांस यूज द लीग टू सी दैट जर्मन डिड नॉट ब्रेक द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल। सी, ब्रिटेन यूज द लीग एज एन अल्टरनेटिव टू, अभी ब्रिटेन ने लीग क्यों यूज़ किया, लीग के साथ हाथ क्यों मिलाया, ताकि वो बोस्लाविस फ्रांस के साथ क्या है, एक कुछ तो अल्टरनेटिव पावर ढूंढ सके उनके लिए, राइट। और लीग ऑफ, और क्या है, और वो लीग ऑफ नेशन इसके लिए देख रहे थे, इसीलिए बनाया था ब्रिटेन ने वगैरह, ताकि वो जर्मन पे ध्यान रख सके, जर्मन के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल की है। सो दे मेड श्योर कि बाबा जर्मन शुड नॉट ब्रेक दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल। To her, the league was an instrument to guarantee her security against, to her क्या था, अभी क्या था यहाँ पे, टू हर लीग वॉज एन इंस्ट्रूमेंट। अभी इसके लिए ब्रिटेन के लिए क्या था, लीग वॉज एन इंस्ट्रूमेंट टू गारंटी हर सिक्योरिटी अगेंस्ट ए रिवेंजफुल जर्मन। The Nazi called the league a joint stock company. See, नाजी यानी मुसोलिनी। मुसोलिनी क्या बोल रहा था, मुसोलिनी ने क्या कर रहा था, ये लीग ऑफ नेशन को क्या बोला, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बूटी वोन इन द वॉर। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों, क्यों ये नाजी जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल रही है लीग ऑफ नेशन को, क्योंकि वॉर में जो भी नुकसान हुआ है वो आप किसी और से ले रहे हो, राइट। दूसरे लाइक सारा जर्मन से निकाल रहे हो ना, वो सारा पैसा कि हमारा इतना लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, सारा आप जर्मन से निकाल ही रहे हो ना। तो ये क्या है, व्हाट ऑल इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ टू, जो भी वॉर में आपने गवाया है और जो आपको सारा वापस मिला वो सारा आपको प्रिजर्व करना है। द फर्स्ट स्टॉक टू द लीग केम फ्रॉम जापान। सी, द फर्स्ट स्टॉक फॉर द लीग, पहला स्टॉक कहाँ से आया, जापान से आया उनके पास इन 1931। कब, इन 1931। शी ऑक्यूपाइड द चाइनीज टेरिटरी ऑफ मंचूरियन एंड सेटअप एंड पपेट गवर्नमेंट देयर। लीग ऑफ नेशन ने क्या किया, सबसे पहले जापान से आया उनको स्टॉक, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जापानीज टेरिटरी ऑक्यूपाइड की, मंचूरियन नाम की। मंचूरियन मतलब खाने की अपनी मंचूरियन नहीं, चाइनीज़, चाइना में एक नाम है इलाके का, एक टेरिटरी का नाम है मंचूरियन, राइट। एंड वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट स्टेट की, पपेट गवर्नमेंट यानी क्या, तेरे को वहाँ पे रूल करना है ना चाइना में, तो चाइनीज़ है, तेरा रूल है ना, तो रूल कर, बट मैं जो बोलूँगा, लीग ऑफ नेशन बोल रही है वैसा तुझे रूल करना है। दैट इज़ नथिंग बट अ पपेट गवर्नमेंट। दो द लीग condemned the act, जापान वॉकड आउट ऑफ द लीग इन 1933। सी, लीग ऑफ नेशन क्या है, देखा लीग ऑफ नेशन क्या है, सारा अगेंस्ट जा रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जापान ने क्या किया, लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया इन 1933।
दिस वॉज अ सीरियस ब्लो। अब जापान ने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया तो सब जगह हाहा मच गया। अरे जापान ने लीग छोड़ दिया, लीग अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए जापान को नहीं खुश थी जापान, तो जापान वालों ने छोड़ दिया। हाँ, हिटलर very systematically violated the treaty of Versailles and then left the league। सी हिटलर ने क्या किया, एकदम धीरे धीरे आराम से शांति से क्या किया, धीरे धीरे वो ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल के अगेंस्ट जाने लगा और फिर एक स्टेज पे क्या किया, उसने लीग ही छोड़ दिया। मतलब उसने से हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल के अगेंस्ट जा रहा था बट क्या कर रहा था, धीरे धीरे सब काम कर रहा था वो, राइट। और फिर एक स्टेज पे उसने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। इन 1935 मुसोलिनी अटैक्ड अबेसिनिया। सी इन 1935 क्या है, मुसोलिनी ने क्या किया, उसने ही अटैक, मुसोलिनी का था, इटली में था ये। तो इन 1935 इटली का ये मुसोलिनी ही अटैक अबेसिनिया। द लीग डिक्लेयर्ड इटली टू बी एग्रेसर एंड अप्लाइड इकोनॉमिक सैंक्शंस। सी तो लीग ने क्या किया, इटली को एग्रेसर डिक्लेयर कर दिया और बहुत सा इकोनॉमिक सैंक्शन मांगा, लाइक इकोनॉमिकली ये लॉस हुआ है, ये सारा इटली से मुसोलिनी से ले लो। Unfortunately, the sanctions were not applied seriously by the members of the league। See, मैंने बोल दिया ना कि लीग ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सैंक्शंस है, ये ले लो, पर ले लो बोल तो हो गया क्या, एक कमेटी कुछ बिठानी चाहिए, राइट, एक ऐसा कुछ होना चाहिए ना, एवरीथिंग शुड बी डन ऑन सम सीरियस बेसिस, राइट। अब बोल दिया तो हो गया क्या, जैसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया हाँ कि कल स्कूल को छुट्टी, तो छुट्टी हो जाती है क्या, रीज़न भी तो देना पड़ता है ना। अच्छा रीज़न भी दे दिया तो सब ने एग्री करना चाहिए, उस हिसाब से नीचे ये सारा सर्कुलेट होना चाहिए नीचे के ऑफिसर्स को, फिर वो नीचे के ऑफिसर सारे स्कूल्स में वगैरह सर्कुलेट वगैरह होते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ लीग ऑफ नेशन ने डिक्लेयर कर दिया बट उसने सीरियसली देखा ही नहीं है, अप्लाई किया ही नहीं कि बाबा जापान ने माना है नहीं माना, ये सब कुछ देखा ही नहीं। आफ्टर ऑक्यूपाइंग अब्सिनिया मुसोलिनी विड्रू फ्रॉम द लीग इन 1936। तो अब मुसोलिनी ने क्या किया, उसने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। पहले मुसोलिनी ने 1935 में अटैक किया अब्सिनिया को, राइट। अटैक करने के बाद लीग ऑफ नेशन ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि बाबा वो एग्रेसर है और उस पर इकोनॉमिक चार्जेस वगैरह लगाए। उसके बाद क्या किया मुसोलिनी ने, उसके एक साल बाद ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर ही तुरंत क्या किया, 1936 में उसने भी लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। द एक्शन ऑफ इटली वॉज अ स्क्लैटरिंग ब्लो टू द लीग। अभी इटली ने भी छोड़ दिया और इटली एग्रेसर इटली को तो लीग ऑफ नेशन ने एग्रेसर डिक्लेयर कर दिया और इटली ने तो लीग ऑफ नेशन भी छोड़ दिया, तो क्या है, थोड़ा सा सब कुछ यहाँ पे हिल गया है। इट प्रूव्ड बियॉन्ड अ डाउट दैट द लीग हैड नो टीथ and could not prevent its member from fighting with one another। सी अब यहाँ पे क्या डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे इसमें कुछ डाउट ही नहीं रहा कि लीग ऑफ नेशन के पास कोई पावर ही नहीं है, ना ही वो अपने मेंबर्स पे कंट्रोल कर पा रही है, ना ही कुछ अच्छे से काम कर पा रही है। लाइक नो टीथ यानी क्या, सपोज यहाँ पे आपको दांत ही नहीं है तो आप खाओगे कैसे, राइट। आप कुछ खा पाओगे बिना दांत के, और आप खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, राइट। तो उसी तरह इसलिए टीथ प्लान इम्पॉर्टेंट रोल। इसलिए जब लीग ऑफ नेशन को क्या है, नो टीथ क्यों बोला है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पास कुछ है ही नहीं ना, ना पावर रही, ना कोई कुछ अच्छे से काम करके ना कुछ खुश रहा, कुछ भी नहीं रहा, इसलिए दे हैव डिक्लेयर्ड विथ नो टीथ। इट प्रूव दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी वॉज एन आइडल ड्रीम। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी बना के रखना, सब कुछ शांति से काम करना, ये सब क्या रह गया, सिर्फ एक सपना ही रह गया। Then next problem, third problem is the problem of minorities. When the USA entered the First World War in 1971, the Allied powers promised to fight for the principle of self-determination of all people। See, जब यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर्ड हुई हाँ विद द अलाइड इन 1971, उसने अलाइड पावर को क्या प्रॉमिस किया था कि बाबा अपन सेल्फ डिटर्मिनेशन इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे और सब लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन पे अपन ध्यान देंगे। बट दिस वॉज नॉट वॉट हैपेंड एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। बट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देयर वर
nearly 30 million minorities group living in lands not their own. जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे वैसा कुछ हुआ ही नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन इस प्रिंसिपल पे रहेंगे करेंगे। वहाँ पे जब ये पीस कॉन्फ्रेंस हुआ तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 30 मिलियंस माइनॉरिटी ग्रुप वो ऐसी जगह पे रह रहे जो वो उनकी खुद की नहीं है। इन रोमानिया फॉर एग्जाम्पल देयर वर अबाउट 1.5 million Hungarians and some more Hungarians lived in Czechoslovakia and Yugoslavia. See, रोमेनिया में क्या था, एक एग्जाम्पल दे रहे वो लोग रोमेनिया का। रोमेनिया में क्या देखा उन्होंने, देयर वर अबाउट 1.5 million हंगेरियंस, राइट। 1.5 million हंगेरियंस ले रहे थे रोमेनिया में, और कुछ हंगेरियंस दे लिव्ड इन ज़ेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लेविया। इन ज़ेकोस्लोवाकिया देयर वर नियरली 3.5 million सुडेंटी जर्मन्स, और ज़ेकोस्लोवाकिया में क्या है, there were 3.5 million student Germans. Likewise, there were Hungarians, Poles, Germans, Italians, Bulgarians, Albanians, Russians and Macedonians living in other countries. See, उसी तरह क्या है, Hungarians, Poles, Germans, Italians, Bulgarians, Albanians, Russians and Macedonians lived in other countries. The people of self-determination had certainly नॉट बिन अप्लाइड फॉर देम। सी, यहाँ पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अपन प्रिंसिपल जो फंडा बोल रहे हैं वो क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं, यू कांट अप्लाई दिस प्रिंसिपल ओवर हियर। ऑस्ट्रेलिया हैड नॉट बिन अलाउड टू जॉइन जर्मन। सी, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रिया ये जो कंट्री है ये जर्मन के साथ नहीं है। एज अ रिजल्ट हिटलर फाउंड जस्टिफिकेशन फॉर annexing ऑस्ट्रेलिया एंड सुडेंटलैंड फ्रॉम ज़ेकोस्लोवाकिया। अभी जर्मन क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रिया जर्मन में आना चाहिए, ऑस्ट्रिया बोलती है हम जर्मन में नहीं आएंगे। तो हिटलर ने क्या बोला, ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने वॉर किया और ऑस्ट्रेलिया अपने कब्जे में ले लिया, और उसके साथ साथ सुडेंटलैंड फ्रॉम ज़ेकोस्लोवाकिया वो भी अपने पास ले लिया। फिर उसने पोलैंड लिया इन 1939 फॉर सेम रीज़न। उसने पोलैंड को बोला आप जर्मन में हमारे साथ आके मर्ज हो, पोलैंड ने नहीं बोल दिया, तो क्या है उसने वॉर करके 1939 में पोलैंड भी अपने पास ले लिया हिटलर ने। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। द क्वेश्चन ऑफ डिसआर्मामेंट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ सिक्योरिटी। अभी द क्वेश्चन ऑफ डिसआर्मामेंट क्या है, it is closely connected with security. It is all related with security. All nations were concerned with security, but this would remain on paper only until they were persuaded to disarm themselves. See, all nations, सारे nations को क्या चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए था ना, किसी को भी वॉर नहीं चाहिए था। और सिक्योरिटी बोला तो क्या खाली पेपर पे लिख के हो गया तो हो गया क्या, अरे मन से भी तो अब सारा सबको सिक्योरिटी चाहिए था ना। आप भी उसके लिए कुछ एफर्ट्स लो सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन इन अ प्रॉपर वे। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ डिसआर्मामेंट इज ओनली कनेक्टेड विथ सिक्योरिटी। ऑल नेशन वे कंसर्न विथ सिक्योरिटी बट दिस वुड रिमेन ऑन पेपर ओनली अंटिल दे वे परसुडाइड टू डिसआर्म देमसेल्फ। मैंने साइन कर दिया कि हमको सिक्योरिटी चाहिए एंड ऑल, तो हो जाता है क्या, अरे आपकी सिक्योरिटी के लिए आप आर्मामेंट्स पे भी थोड़ा ध्यान दो। लाइक आर्मामेंट्स के लिए भी सब कंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस डालो ना, इससे ज़्यादा आप आर्मामेंट्स नहीं रख सकते एंड ऑल। ईच कंट्री वेटेड फॉर द अदर टू बिगिन परसुएट टू डिसआर्म देमसेल्फ। सी, फॉर डिसअलार्मिंग फर्स्ट। सी, हर कोई कंट्री राह देख रही थी कब कौन सी कंट्री आर्म्स ज़्यादा यूज़ कर रही है, कैसे यूज़ कर रही है। तो ऐसा होता है ना, अरे उसने बहुत ज़्यादा आर्म्स ले लिए, आर्म खरीदे एंड ऑल, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी ज़्यादा आर्म्स वगैरह लेके वॉर के लिए रेडी रहता हूँ। ये कंट्री ने बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड आर्मामेंट्स ले लिए, अब ये कभी भी किस पे भी वॉर कर सकता है, तो मेरी कंट्री है तो मेरी कंट्री के भी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करती हूँ, मैं भी आर्म्स एंड आर्मामेंट ज़्यादा लेके रख लेती हूँ, राइट, ताकि मेरे साथ कोई वॉर करे तो आई एम रेडी फॉर दैट वॉर। ऐसे हर कंट्री करने लगेगी तो विल इट बी गुड? नो। By the Treaty of Versailles, German had been forced to disarm. See, as per Treaty of Versailles क्या है, जर्मन के पास
आर्म्स आर्मामेंट ज़्यादा नहीं रहेंगे, मिलिट्री नेवी पे भी दूसरी कंट्री का कब्जा एज इन कंट्रोल रहेगा एंड ऑल. शी हैड होप all nation would also bring about a certain degree of disarmament since the term of league convenient provided for it. See, फिर उनको क्या लग गया, लीग ऑफ नेशन ने सिर्फ जर्मन पे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाले, अगर जर्मन के साथ वो बाकी कंट्रीज पे भी थोड़े और रिस्ट्रिक्शंस डालती, उनके आर्म्स एंड आर्मामेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस डालती, तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर फॉर जर्मन ऑल्सो ना. तो जर्मन के साथ भी इंजस्ट नहीं होता था. Some success was achieved in the field of naval armament. See, थोड़ा बहुत सक्सेस कब मिला था? In the field of naval armament. In 1921, at the Washington Conference, USA, Japan, France and Italy agreed to limit their navies in the fixed ratio. नेवी का एक रेशियो एक फिक्स्ड रहता है, लाइन एंड ऑल. तो थोड़ा सा नेवल फोर्स में उनको थोड़ा सा सक्सेस मिला. इन 1921 क्या हुआ? एट द वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस. 1921 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुआ था. यूएसए, जापान, फ्रांस एंड इटली दे एग्रीड टू लिमिट देयर नेवीज इन फिक्स्ड रेशियो. व्हाट डिड इट? उन्होंने उनका नेवी एक फिक्स्ड रेशियो में रखने का प्रॉमिस किया. अटेम्प्ट्स वेर ऑल्सो मेड टू सिक्योर अ लिमिटेशन ऑन लैंड आर्मामेंट्स. सी, ये इसमें थोड़ा सक्सेस मिल गया तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और सक्सेस पाने की कोशिश की इन द लिमिटेशन ऑन लैंड आर्मामेंट. द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस met at Geneva in 1932 but came to nothing. See, the world disarmament conference क्या हुआ? It was कहाँ पे held हुआ था? It was held in Geneva in 1932 but came to be nothing. But मिला कुछ भी नहीं यहाँ पे उनको. German demanded parties from France, parity with France. France would not disarm because to her security meant the isolation and totally disagreement of German. फिर जर्मन ने क्या बोला, अरे फ्रांस का भी थोड़ा सा, फ्रांस में भी था और में हमारे साथ, तो फ्रांस के पास भी सारा ये करो ना, उनको भी लिमिटेड वगैरह करो. तो बट फ्रांस ने वो नहीं माना. Britain and USA could not conceive France and so finally attempt of the league end in failure. See, Britain and USA फ्रांस को कन्विंस नहीं कर पाए और फाइनली क्या हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया यहाँ पे. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, aggressive nationalism. The First World War resulted in toppling of 4 monarchies and the collapse of their empire. See, First World War का result क्या था? It was in the toppling of 4 monarchies and collapse of the empire. यहाँ पे एक empire पूरा collapse हो रहा था. It led to the creation of new nation on the basis of principle of self-determination as proclaimed by President Woodrow Wilson. See, यहाँ पे अपन क्या रख रहे हैं, एक नया नेशन बिल्ड करना है जिसका मेन प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड बी द मेन प्रिंसिपल as proclaimed by President Woodrow Wilson. It was by natural that people from this nation should feel proud of their countries. See, अब सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ जीना है, ये प्रिंसिपल है, तो सारे नेशन क्या है, वो हर कंट्री हर नेशन शुड लिव विथ सम प्राउड अबाउट देयर कंट्री. जैसे अपने को इंडिया के बारे में गर्व है, वैसे ही हर किसी कंट्री को, हर लोगों को, हर कंट्री के लोगों को उनके लिए गर्व महसूस करना चाहिए जिस कंट्री में वो रह रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली द नेशनलिस्ट स्पिरिट टुक एन एक्सट्रीम एंड एग्रेसिव फॉर्म. बट ये जो नेशनलिस्ट स्पिरिट क्या है, ये जो नेशनलिस्ट स्पिरिट क्या है, इट टुक एन एक्सट्रीम एंड एग्रेसिव फॉर्म. नेशनलिज्म was emphasized and promoted by Mussolini and the fascist party. See, nationalism was emphasized. अब nationalism पे किसने ज़्यादा emphasize किया और किसने प्रमोट किया ये nationalism? It was by Mussolini and the fascist party. मुसोलिनी एंड फासिस्ट पार्टी, इन लोगों ने क्या है, नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, Italians were continuously reminded of their past greatness. इटालियन को कंटिन्यूसली वो मुसोलिनी याद दिलाता था
पहले इटली ऐसा था वैसा था और आगे कैसा होना चाहिए एंड ऑल। Mussolini tried to revise the glory of the ancient Roman Empire and advocated the use of force to attain such goals. फिर मुसोलिनी बोल रहा था अपना इटली पहले ऐसा था वैसा था, आज इटली को कैसे कर दिया एंड ऑल, आज रोम देखो कैसा है क्या हुआ है, तो अपने गोल अपन ने भी अटेंड करने चाहिए। द जर्मन्स हैड बीन ह्यूमिलेटेड आफ्टर द वॉर, और जर्मन को भी हाल बहुत बुरा था वॉर के बाद। हिटलर promised to restore the nation's pride and glory by tearing up the Treaty of Versailles। तो हिटलर ने भी प्रॉमिस किया जर्मन ने जो भी खोया है सारा प्राइड ग्लोरी मैं सब वापस लेके आके दूंगा, जब ये सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल ख़त्म करके। थ्रू स्पीचेस हिटलर promoted a sense of militant nationalism। सी थ्रू द हिटलर स्पीचेस से वगैरह स्पीच वगैरह दे रहा था, लोगों को समझा रहा था और लोगों के मन में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जागृत कर रहा था। मिलिटेंट नेशनलिज्म was used to promote imperialistic expansion, Japan activities in the Far East, Mussolini's invention of Abyssinia and Hitler's invention of Australia, Yugoslavia and Poland finally brought the world to another war। See, अब क्या हो गया, मिलिटेरी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लग गई। जापान ने भी अपना एम्पायर एक्सपांड करना शुरू कर दिया, मुसोलिनी ने भी अपना टेरिटरी एक्सपांड करना शुरू कर दिया, लाइक उसने अब्सिनिया पे कंट्रोल किया। हिटलर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जोकोस्लेविया एंड पोलैंड फाइनली अपने हाथ में ले लिया। इससे क्या हो गया, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, राइट। ऑल दिस facts slowly gave rise to the World War 2। World War 2 ऐसे शुरू नहीं हुआ, अब लीग ऑफ नेशन फेल होने लग गया तो what happened, slowly World War 2 started taking place। We'll wind up our lecture here। In next lecture we'll start with the next point। Meanwhile you can read the topic well. If you have any doubt you can mail me on my mail ID। My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in। Thank you।